So since we have one new participant today, Nidhi. So Nidhi, just a basic background about the classes. So these are health and mindset classes, I say, because health is not just the physical health. So I don't just want to restrict this to exercise. I want to take it beyond. So here we focus on health as a concept, wherein health means physical health, mental health, emotional and spiritual health. So we focus on health from all the angles, not only from the कि weight loss करना है या because why do most people fail at weight loss? Because they don't think beyond their physical. Okay. So here we look at complete transformation, being the best version of yourself, and basically living your life in such a way that at the end of your life, बोलते हैं ना, when you are on a deathbed, there should be no regrets. Yeah. So that's the purpose of this class. It is much beyond the physical. Okay. But I'm doing few courses from the US, and one is from the Cornell. I'm doing this about healthy living and nutrition. And this month I learned about heart disease. Okay. So heart disease, as you all know, जो मैंने पहले बताया था, it is the number one killer, heart disease. So, and this is something which can be prevented to a large extent. Okay. So मैं क्यों बोल रहा हूँ नंबर वन किलर? बिकॉज स्टेटिस्टिक्स बताते हैं दैट इन द यूएस के जो स्टेटिस्टिक्स वो रिलाई कर सकते हैं, over 40% of deaths that are happening are to do something with the heart. So that's why it is so important for us to understand these concepts. जो मैं पूरा महीना cover करूंगा. There are so many things to be covered in the heart. It will take at least 10 to 12 concept sessions, 15 minute के. So I request all of you just attend this part now. This will save you lakhs and crores in medical bills going forward, and the opportunity cost of illness. उसका तो हम यही नहीं है कि आपकी वैल्यू आपके फैमिली के लिए क्या है, आपका जो काम का लॉस होता है. बिकॉज देर इज नो पॉइंट इन लिविंग लाइफ इन सच अ वे कि हम अभी तो बोलते हैं ना, यू इंडल्ज इन ऑल द रॉन्ग थिंग्स एंड देन स्पेंडिंग द सेकेंड ऑफ योर लाइफ कि एवरी ऑल्टरनेट डे हमें एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर, हॉस्पिटल्स एंड ब्लड टेस्ट, एंड doesn't make any sense to live your life in such a way. And all these are बोलते हैं ना controllable factors and even reversible. दैट इज मोर पावरफुल. कि चलो यार हमने गलतियां कर दी, आज हम 50 साल के हो गए, हमने बहुत सारी गलतियां करी. दीज थिंग्स कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो. दैट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग आई वुड से, कि हम बीमारियों को हम रिवर्स कर सकते हैं, हार्ट डिजीज को भी हम रिवर्स कर सकते हैं थ्रू द थिंग्स दैट वी विल लर्न इन थ्रू आउट दिस मंथ. तो जस्ट बी अटेंटिव. कुछ नहीं समझता है, डोंट वरी, हमें थोड़ा टेक्निकल भी जाऊंगा बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड फैट्स, साइंस बिहाइंड ट्राइग्लिसराइड, साइंस बिहाइंड हाउ फैट is transported in our body, why we need to exercise, why we need to meditate, why we need to relax. काफी कुछ हम सीखेंगे. Okay. So my question to all of you first is fat a good thing or a bad thing? जो बोलते हैं फैट मतलब जो हम फैट खा रहे हैं through diet, is it a good thing or a bad thing? Anyone? Bad thing. Fat is a bad thing. Okay. Anju aunty is saying fat is a bad thing. Anybody else has any other view? हेल्दी Both फैट things. गुड फॉर अस. जरूरी है अपनी बॉडी के लिए, ऐसा नहीं है. एक एक करके. रिंपल, या रिंपल? मतलब ऐसा नहीं कि फैट वर्ड सुना तो हम बोलेंगे इट्स बैड. नो, समवेयर आवर बॉडी नीड्स हेल्दी फैट आल्सो. वो भी जरूरी Yes. है. और Okay. I मतलब यू think शुड नो व्हाट इज हेल्दी फैट, व्हाट इज अनहेल्दी फैट, क्या हमें लेना है. yes. So Rimple is like कि fat is not bad, that is required. Okay. बलजीत आंटी, आपका Yeah, व्यू क्या? we need to have fats because some of the vitamins are fat solubles. If we have fats, then it is possible. Absolutely. Yes. Anybody else? Any other view? Anything in excess is bad. So Okay. like fat beyond a certain point is bad, but otherwise anything like that what we read in earlier classes that it become toxic. Otherwise it's absolutely fine. Okay. So some amount is fat is good, but excess is bad. Okay. And Jananti, you were saying something. Anything else you want to add? The omega-3 fatty acids particularly. Okay. Jananti is like, there is a certain section of fat which is called the omega-3 that is good for your health. Okay. So good that most of you have good knowledge about good fats, bad fats. जो हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, जो बलजीत आंटी ने बोला, it was very right that our body needs healthy fats to, जो vitamins, soluble vitamins, to get that into our body we need certain amount of fat. Okay. Why is fat painted bad? Because fat को generally लोग कंपेयर करते हैं मोटापा के साथ में. ओके. तो अगर वो मोटा है तो बोलते हैं ही इज फैट, एंड दैट्स हाउ फैट गॉट द बैड नेम.
पर वो मोटे हैं ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट हैव अ बिगर रोल, जो हम फ्रीक्वेंट ईटिंग करते हैं, जो हम दबा के खाना खाते हैं, जो रोटियां सब्जियां एंड चावल एंड इतना जो हम भर भर के खाने की आदत है, तो कार्बोहाइड्रेट्स इज द मेन कल्प्रिट एंड फैट्स को खराब नाम मिल गया। ओके, सो फैट एक्चुअली इज नॉट बैड फॉर योर हेल्थ। व्हाट इज बैड इज द सैचुरेटेड फैट, जो बैड फैट बोलते हैं उसको आप बैड फैट समझ लीजिए। ओके, एंड द ट्रांस फैट, दैट इज द पॉइजन, मतलब द काइंड ऑफ फैट दैट वी गेट इन मैगी, थ्रू मैगी या चीज या एनिमल प्रोडक्ट्स। ओके, तो एक सिंपल भाषा में बोलना चाहूँ ना आपको मैं, आई डोंट नो वेदर नेक्स्ट सेशन में आप होंगे कि नहीं होंगे। ओके, एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल आता है, वो प्रकृति से नहीं आता है, दैट डजंट कम फ्रॉम नेचुरल फूड्स, दैट कम्स ओनली फ्रॉम एनिमल फूड्स, एनिमल सोर्सेज, दैट इंक्लूड्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके, तो दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ बैड फैट, द सैचुरेटेड फैट, जिसको जिसके वजह से हमें हार्ट डिजीज होती है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट टुडे। हम एक साइंस समझेंगे कि व्हाट इज फैट, ओके, एंड हाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड इन अवर बॉडीज। थोड़ा टेक्निकली अगर आपको नहीं समझे तो आप प्लीज अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं आप, अगर आपको नहीं समझे। ओके, सो मोस्ट ऑफ द बैड फैट दैट वी कंज्यूम, हमारी बॉडी भगवान ने बहुत रेजिलियंट बनाई है। ऐसा नहीं है कि आप बैड फैट खा लेंगे तो आज आपकी मौत हो जाएगी। आज क्यों 50-60 साल के बाद ही मोस्ट केसेस में हार्ट डिजीज होती है। ऑल्दो आज का खाना इतना खराब हो गया कि हम अपने बच्चों को इतना जंक फूड देते हैं। टिफिन में हम क्या देते हैं उनको, ब्रेड, चीज, मैगी, पास्ता, ऑल द रिफाइंड स्टफ, ऑल द प्रोसेस्ड स्टफ, हम अपने बच्चों को वो खिलाते हैं। तो नो वंडर्स आज 10 साल 11 साल में हार्ट अटैक आ रहा है। ओके, मैं गुजरात का आपको फैक्ट दिखाता हूँ, यू कैन चेक ऑन द इंटरनेट। 40% ऑफ हार्ट अटैक्स, मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे वाइफ किचन में, वो भी सुन ले। 40% ऑफ हार्ट अटैक्स हैपन बिटवीन द एज ऑफ 11 and 25। ओके, दिस इज द गवर्नमेंट का आंकड़ा है, ये गुजरात। And why it is happening? Because we are responsible for it. हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम we as parents don't understand why it is important for kids to eat healthy. Because इतना ज्यादा हम उनको सैचुरेटेड फैट दे रहे खाने के लिए। अरे बच्चा है तो खाएगा ही, थोड़ा तो उसको घी खिलाओ तो उसकी हड्डी कैसे मजबूत होगी। दूध पिएगा तो वो यार कॉम्प्लेन पी के यार कपिल देव, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, वी आर बीइंग फूल्ड। ये सब प्रोसेस्ड खाना खा खा के, बिकॉज बॉडी उसको एक फॉरेन सब्सटेंस समझता है। तो दिस एनिमल फैट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, द फैट्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, दिस इज द मेन कल्प्रिट। और भी काफी कल्प्रिट्स है, बट ये बात आप समझ आइए बेसिकली कि ज्यादा सैचुरेटेड फैट कहाँ से आ रहा है। अब सपोज आपने फैट खा लिया, सपोज ओके, यू हैव टेकन बैड फैट, गुड फैट, जो भी लिया, अवर बॉडी कैनॉट, बोलते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे तुरंत एक अब्सॉर्ब हो जाता है, जो स्पेशली द सिंपल कार्ब्स जो होते हैं या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी, बट the assimilation of fat in the body is much more complex. It doesn't happen कि हमने खाया and सीधा हमारे blood stream में चला गया. That is much more complex. जो fat जो हम खा रहे हैं उसकी एक जर्नी होती है. Okay, it gets converted from one form to another. And इसके लिए बहुत important है, there is one enzyme called as lipase. Okay, it is LIPASE, lipase. So anybody has an idea? मैंने पहले बोला था lipase कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले बॉडी में अलग अलग जगह प्रोड्यूस होता है, बट वेयर डज इट गेट प्रोड्यूस फर्स्ट? एनीबडी हैज एनी आइडिया? वेयर डज इट गेट प्रोड्यूस फर्स्ट, द एंजाइम लाइपेज? Liver? Is it the liver? नो, या लिवर में होता है बट नॉट इन द लिवर फर्स्ट। बट लिवर में लाइपेज की जगह बाइल होता है। इफ यू वांट टू गेट इन द टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बाइल। पैनक्रियाज, yes, पैनक्रियाज में लाइपेज होता है, देयर इज पैनक्रियाटिक लाइपेज, बट दैट्स नॉट द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस कहाँ पर है? लेट मी सी हु गेट्स द प्राइज, हु इज मोस्ट अटेंटिव इन द क्लास। या नवमीत, आप बोल रहे थे कुछ, आपका हाथ कैमरा के पास में है ना? Small intestine. स्मॉल इंटेस्टिन, डुओडेनम में होता है। इन द डुओडेनम, यस, लाइपेज इज प्रोड्यूस्ड देयर। बट उसके पहले भी जाइए, स्मॉल इंटेस्टिन के पहले खाना कहाँ पर जाता है? सबसे पहले खाना कहाँ पर जाता है? चलिए इशारा दे दिया मैंने। सॉरी, फूड पर Esophagus. फूड पर ईसोफेगस के पहले खाना कहाँ पर जाता है? Mouth. Mouth. माउथ। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सलाइवरी लाइपेज। सलाइवा सलाइवा, यस, सलाइवरी लाइपेज। मैं क्यों बोलता हूँ खाना आप चबा के खाइए? ओके, सिंपल लॉजिक है दैट इट ब्रेक्स डाउन मेनी थिंग्स, साथ में वो फैट को भी ब्रेक डाउन करता है। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, मैं अगेन गोइंग बैक टू वेरी बेसिक थिंग, chew your food properly. It will make job much easier for the rest of the GI tract and the rest of the organs. मत हड़बड़ा के खाइए. Eat in a relaxed
way, calm way, chew it properly, keep your phones aside, keep the IPL aside, keep the Netflix aside. That's not the time for entertainment. You are doing much more harm than good by engaging in um, activities during eating, मैं बोलूंगा any kind of activity. Okay, तो खाना चबाएंगे तो एक लाइपेस करके एक एंजाइम हमारे सलाइवा में प्रोड्यूस होता है which helps you break down fat first. पूरा ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है वो भी. ओके, बिकॉज वो हमारे शरीर में ऐसे जाता है कि इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज अ हार्ड सब्सटेंस, थोड़ा हार्ड सब्सटेंस है, उसको ब्रेक डाउन करना इतना आसान नहीं है, उसको ब्रेक डाउन करना. ओके, तो वो फिर कन्वर्ट होता है, अलग अलग रूप लेता है वो. ओके, एंड हमारे जो फैट सेल्स होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो बोलते हैं ना कि द VLDL एंड द LDL, जो हम नॉर्मली ब्लड टेस्ट में सुनते हैं, उसके ऊपर सर्टन रिसेप्टर्स होते हैं. ओके, तो भगवान ने प्रोड्यूस इन द सलाइवरी ग्लैंड. यस, इट इज फर्स्ट प्रोड्यूस इन द सलाइवरी ग्लैंड एंड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में प्रोड्यूस है. जैसे हमारे पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है लाइक दिस. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बाइल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड गॉल ब्लैडर. तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सारे ऑर्गन्स को बराबर मेंटेन करना, बहुत जरूरी है. बट ये समझ जाइए कि फैट की एक जर्नी होती है, फैट की एक जर्नी होती है जो अलग अलग रूप लेता है. एंड दोज प्रोटीन्स, फैट इज इनफैक्ट अ प्रोटीन, एक लाइपोप्रोटीन है, उसके ऊपर सर्टन रिसेप्टर्स होते हैं. ओके, उसके ऊपर सर्टन रिसेप्टर्स होते हैं विच हेल्प्स इट ब्रेक डाउन. ओके, एंड रिसेप्टर्स प्राइमरली होते हैं हमारे लिवर में. ओके, तो लिवर इज रिस्पॉन्सिबल, किसी ने लिवर का नाम लिया था, लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट मेटाबॉलिज्म इन अवर बॉडी. ओके, लिवर इज रिस्पॉन्सिबल, जो उसको ब्रेक डाउन करते जाता है ताकि आपके बॉडी में वो अच्छे से ब्लड स्ट्रीम में, एंड वो जो पर्पस के लिए है वो पर्पस सॉल्व करके उसको ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है, जो हमारा लिवर हेल्थ करता है. दैट्स व्हाई हैविंग अ गुड लिवर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिवर हेल्थ के लिए क्या करना है हम नेक्स्ट मंथ में कवर करेंगे, बट लेट्स दिस मंथ फोकस ऑन द हार्ट हेल्थ. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट, मैंने जो बोली ना, फैट की अलग अलग जर्नी होती है, कि फैट फर्स्ट इज एक सर्टन फॉर्म में, फिर वो दूसरा फॉर्म लिया, तो टोटल 5 फॉर्म्स ऑफ लाइपोप्रोटीन्स होते हैं. उसमें एक जो बैड फैट मानते हैं, सबको मालूम है, ब्लड टेस्ट सबने कराया होगा, मेनी डॉक्टर्स जो बन जाते हैं गूगल डॉक्टर्स हियर, विच इज द बैड फैट, उसको कौन सा बोलते हैं? एनीबडी रिमेंबर्स? ब्लड टेस्ट में जो आता है कि डॉक्टर बोलते हैं आपका ये बहुत हाई है, खराब है आपके लिए. विच कोलेस्ट्रॉल, विच फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज बैड? एनीबडी? Triglycerides. ट्राइग्लिसराइड उससे भी खराब क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड, यस इट इज बैड. या LDL. LDL. LDL, no, HDL is the good fat, पूनम. HDL is the good fat, LDL is the bad fat. तो LDL में क्या, एक सर्टन बोलते हैं ना, जो मैंने बताया ना 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, LDL में खाली एक तरह का ही रिसेप्टर होता है. दैट इज द प्रॉब्लम. सो योर लिवर कैन नॉट ब्रेक डाउन LDL. LDL को हमारा लिवर ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है. एंड वो बोलते हैं ना कि उसमें एक तरह का रिसेप्टर है विच इज प्रेजेंट इन द आर्टरीज ऑफ द हार्ट, उसको बोलते हैं एपोप्रोटीन B receptors, and those are there in the heart also, and it gets stuck to your artery walls. And ये प्रोसेस मालूम है कब शुरू होता है? It starts as soon as the age of 10. This process starts. And don't think आप एकदम हेल्दी खाना खाते हैं तो आपको नहीं होता है. Everybody has that. Certain amount of blockages are there in everybody's heart. Okay, so all the more important for you to understand this, that जो LDL है, अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया, आपका LDL अगर हाई आता है, आपका ट्राइग्लिसराइड हाई आता है, मतलब बॉडी ब्रेक डाउन ही नहीं कर रहा. इफ योर ट्राइग्लिसराइड इज हाई, आइदर योर पैनक्रियाज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आपको डायबिटीज है तो आपका ट्राइग्लिसराइड हाई आएगा, या अगर सब कुछ बराबर चल रहा है, आपका LDL हाई, मतलब यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग और नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम. काफी फैक्टर्स है जो हम आगे सीखेंगे कि LDL क्यों हाई जाता है हमारा. बट वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एक्सरसाइज हियर, जो मैं आज स्ट्रेस करना चाहूंगा. एक्सरसाइज इज वन थिंग दैट कैन नेचुरली ब्रिंग योर LDL डाउन, एंड HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ा सकता है. हम साइंस में बाद में जाएंगे, बट आज के लिए यू कैन ट्रस्ट मी कंप्लीटली ऑन दिस, एंड बिकॉज माय प्रोफेसर्स एट कॉर्नेल आल्सो आर सेइंग दिस नाउ, दैट at least 40 to 45 minutes of moderate intensity exercise 5 to 6 times in a week आप करिए. 3 दिन तो मैं करा ही देता हूँ आपको, 3 दिन तो मेरे साथ करिए, बाकी 3 दिन में मैं आपको गाइड करते रहता हूँ ग्रुप में, मैं वीडियोस डालता हूँ ग्रुप में, बिकॉज वो LDL अगर ज्यादा सर्कुलेट करे ना आपके ब्लड में, वो कहीं ना कहीं जाके स्टक होगा आपके आर्टरीज में. ओके, बिकॉज दे बोथ हैव द सेम रिसेप्टर्स, द एपोब रिसेप्टर्स जो मैंने आपको बोला, वो LDL में भी है, वो आपके हार्ट में भी है. एंड इट्स वेरी बैड, एंड इट्स इन अवर हैंड्स, हमारे हाथों में है हम क्या खाते. मैंने जैसे बोला ना, एक तो सैचुरेटेड फैट प्रोसेस्ड फूड पूरा बंद करिए. Don't eat late dinners. It again बोलते हैं ना कि it all circulates in your blood throughout the night and creates havoc in your system.
डोंट टेक अननेसेसरी स्ट्रेस, जो हम कवर करेंगे व्हाई स्ट्रेस इज बैड एंड स्ट्रेस से क्यों ये प्रोसेस गड़बड़ा जाता है, जो एलडीएल कन्वर्ट हो रहा है एचडीएल में क्यों नहीं हो पाता है, वो भी हम सीखेंगे आगे जाके काफी कुछ। बट आज के लिए, आज के कॉन्सेप्ट क्लास के लिए इतना आप समझ जाइए कि वाई एलडीएल इज बैड। सबको समझ गया वाई एलडीएल इज बैड? एटलीस्ट बेसिक तो समझ गया आपको। आई डेंट गो इनटू वेरी वेरी डिटेल्ड मेडिकल थिंग कि फैट की एक जर्नी होती है। आई जस्ट रिकैप द एंटायर सेशन। फैट की एक जर्नी होती है, इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स। बॉडी नेचुरली उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है सो दैट इट डजंट कॉज हार्म, बट देर इज वन फॉर्म ऑफ lipoprotein which is called as LDL, low density lipoprotein, which doesn't have few receptors. हमारा लिवर उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, एंड व्हेन उसका लेवल जब बढ़ जाता है, एलडीएल का लेवल जब बढ़ जाता है, इट गेट्स स्टक इनटू द आर्टरीज ऑफ योर हार्ट बिकॉज दोज हैव द सेम रिसेप्टर्स। द एपोबी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे हार्ट की लाइन, हार्ट के जो वॉल ऑफ द आर्टरीज है उसमें भी होता है। एंड दैट्स व्हाई पीपल बोलते हैं ना हार्ट अटैक आ गया, उसको स्ट्रोक आ गया। ये मतलब ये हो रहा है कि हिज आर्टरीज आर क्लॉक्ड कंप्लीटली, वो ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होना चाहिए, ऑक्सीजन फ्लो होना चाहिए, खत्म हो जाता है एंड यू गेट अ हार्ट अटैक। एंड जो स्टेंटिंग होता है, दैट इज द वे टू ओपन योर आर्टरीज, और द बाईपास सर्जरी की, इट इज सो बैड दैट इट कैन नॉट बी ओपन बाय अ स्टेंट, देन ऑल दीज मेडिकल इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड। आपको अगर इन सब चीजों से बचना है, अब आप पूरे मंथ में सीखेंगे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, व्हाई इज रिलैक्सेशन इंपॉर्टेंट, जो हम बोलते हैं रिलैक्स करिए। मैं क्यों बोलता हूँ, आप डोंट, बोलते हैं ना रन आफ्टर मनी, इतने पैसे के पीछे भी मत भागिए। आपकी पूरी रात उठ के आप काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो सोचते हैं कि नहीं, तुम जिंदगी नहीं समझते हो, तुम्हें दुनियादारी पता नहीं है, काम करना क्यों जरूरी है, मेहनत करना क्यों जरूरी है। बेसिकली सी, यू हैव टू ड्रॉ लाइन समवेयर, कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नीड इन योर लाइफ and the health aspect also. After a certain point, there is no point in earning that much money और इतना हम जद्दोजहद करें खुद के लिए। Even people who do social service here, तो मेरे ग्रुप में कुछ लोग हैं who do social service out of the way। मालूम है आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, आपको दुनिया बदलनी है, आपको लोगों की मदद करनी है, but don't do it beyond a certain point which affects your health. What's the point in ruining your own health in helping others? Set systems, delegate, hire more people, so many things can be done. I'm not saying that you scale down on your dreams, but somewhere, somehow, the unnecessary stress that we take, the work stress, रात को लेट तक जगना, it creates havoc with your cardiovascular health. Okay, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? बिकॉज हमारे जो सर्टन सेल्स होते हैं, एडिपोज सेल, जो फैट सेल्स होते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जो हम बोलते हैं ना फैट बर्न हो रहा है, यस, एक्चुअली द फैटी एसिड्स दैट आर देयर, दैट आर कंज्यूम्ड बाय आवर मसल्स फॉर एनर्जी। दैट्स व्हाई आई से शाम को खाना आप 7 बजे खा लीजिए, 6 बजे खा लीजिए। आप 7 बजे खाना खाते हैं, आपका ग्लूकोज स्टोर्स अभी 0 हो चुका है। जिन्होंने कल, किस किसने खाना कल खा लिया था 7-8 बजे? किस किसने? एनीवन who had their dinners by 7-8? So what is happening with you guys is, जिसने 7-8 बजे खा लिया था, आपको 12 घंटे हो चुके हैं अभी। ओके, तो योर ग्लाइकोजन स्टोर्स, योर ग्लूकोज स्टोर्स आर डिप्लीटेड नाउ। अभी आप जो नेक्स्ट 45 मिनट्स मेरे साथ एक्सरसाइज करेंगे ना, आपके फैट स्टोर्स यूज होंगे एज एनर्जी। ओके, सो योर एलडीएल विल कम डाउन। सो आज से प्लेसिबो अपना क्या होगा? प्लेसिबो मतलब ये होता है कि अपने आप को क्या बोलना है कि मेरा एलडीएल डाउन जा रहा है। Okay, your LDL is going down when you exercise in the intermittent fasting phase, जो बोलते हैं ना, towards the latter part of your IF phase, if you exercise, your LDL actually comes down by many points. Okay, so that's why अगर आपको कोई काम भी है ना, सपोज आप घूमने भी कहीं जा रहे हैं, पहले आप खाना खा लीजिए, बाद में घूमिए। आप डोंट डू द अदर वे अराउंड कि चलो खाना हम लास्ट में खाएंगे। तो ये छोटे छोटे टिप्स है जो आपको बहुत बीमारियों से बचा सकते हैं। आपको ठीक है ऑफिस से लेट आना है ना, आप टिफिन साथ में ले जाइए, खाना आप खा लीजिए 6-7 बजे, बाद में काम करके आप 9-10 बजे घर आइए ना, कौन आपको रोकता है? कि पॉसिबल सब कुछ है। आपको ये है कि आपको इंटरवेंशन से बचना है, तो आप ये सब करिए। हाँ ठीक है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम डॉक्टर्स अफोर्ड कर सकते हैं, इट्स ओके, मुझे बीमारी हुई, गोली वाली जिंदगी, ओके, देन इट्स योर लाइफ, अल्टीमेटली लाइफ तो आपकी, चॉइसेस जो है हमारे हाथ में। ओके, तो ये मत बोलिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सब कुछ है। आई वॉज अ वर्कोहॉलिक, I used to like and work 20 hours in a day and feel proud about it. And I knew that what damage it did to my mental health and my physical health. And I had a fatty liver and I took that as a wake up call. डॉक्टर तो बोल देगा फैटी लिवर बड़ी चीज नहीं है, चलो ग्रेड 1 फैटी लिवर है। आई टुक माई ग्रेड 1 फैटी लिवर एज अ वेकअप कॉल। आई ब्रॉट डाउन माई वेट बाय 12 kgs। आई शट ऑफ माई फोन 7-8, मेरा फोन बंद कर देता हूँ, बिकॉज आई नो दैट हाउ इंपॉर्टेंट स्लीप इज फॉर माई हेल्थ। एंड जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ थ्रू दिस क्लासेस, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, मेक वन चेंज एट अ टाइम।
मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ना कि अपने हार्ट हेल्थ के लिए करिए आप, बिकॉज दिस इज द नंबर वन किलर, एंड बीमारी बोल के नहीं आती है। डोंट थिंक कि आपको नहीं हो सकता है ये, कि दिस इज द बिगेस्ट डिल्यूजन कि ये तो मुझे नहीं हो सकता है ये। कोई बीमारी नॉक करके नहीं आएगी कि मैं कल आपके पास आ रहा हूँ। आई हैव नो सो मेनी पीपल जिसको मैंने वार्निंग दिया था प्लीज चेंज योर डाइट, व्हेन दे गेट अ हार्ट अटैक आफ्टर 4-5 years, तब उनको मेरी बात याद आती है। डोंट वेट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ दैट हार्ट अटैक। ये जो छोटे छोटे सिग्नल्स है ना, ये आपका डायबिटीज बॉर्डर लाइन है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, यू आर नॉट यू आर गेटिंग इचिंग सेंसेशन इन द बॉडी, आपका पेट बहुत निकल गया, बड़ा हो गया, सिर्फ सिग्नल्स है ये। ओबेसिटी इज द रूट कॉज। ओके, सो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। मैं हमेशा ये तो बोलता हूँ आपको, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। द चॉइसेस दैट यू मेक एवरी लिविंग मोमेंट विल डिटरमाइन सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ आपकी कैसे जाती है। एंड देयर इज नो विजडम इन स्पेंडिंग योर सेकंड हाफ ऑफ योर लाइफ इन हॉस्पिटल व्हेन यू हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, ऑल द विजडम इन द वर्ल्ड, व्हेन इज द टाइम टू लाइक बोलते हैं ना, एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर एफर्ट्स। इतने साल आपने जो एफर्ट्स लेके इतना पैसा कमाया, जब उसको भोगने का समय आ रहा है, तब मालूम पड़ा कि you don't have the energy within you, you don't have that health with you, so that you can enjoy the fruits of your action. And it's a very silly thing, मैं तो बोलूँ, it's a very silly thing because we as human beings have choices. हमारे पास choice है to put something in your mouth, what time are you eating, how much you are eating, whether you are exercising or not, ये सब हमारी choices हैं। वी आर नॉट किड्स, ऑल ऑफ अस आर एडल्ट्स यार, हम कोई बच्चे नहीं है कि हमें बताना पड़ेगा ये क्यों जरूरी है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाते थे मैं, जो हम भूल जाते हैं, जो सोसाइटी ने ऐसा कंडीशनिंग कर दिया है कि थोड़ा बहुत तो चलता है। अगर चलता है, एटीट्यूड चाहिए, तो थोड़ा बहुत दवाई भी चलता है, थोड़ा बहुत हार्ट अटैक भी चलता है, थोड़ा बहुत डायबिटीज भी चलता है। बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज डोंट थिंक दैट यू विल डू वन थिंग एंड यू विल गेट अनदर थिंग, दैट्स द मोस्ट फूलिश थिंग, दैट यू डू ऑल द रॉन्ग थिंग्स एंड यू एक्सपेक्ट कि यार मुझे तो कुछ नहीं होगा। Yeah, few people get away, no doubt, few people get away. Those are the very lucky ones, maybe, or maybe they don't know what is true meaning of health. Maybe they have never experienced health in the true sense. But after learning so much, let's make these changes. Can we do these small changes जो हम classes में सीख रहे हैं? Can we do it? And even this is not very difficult. और difficult नहीं है ये। सब बोलते हैं ना कि one change at a time. एक एक वीक टारगेट सेट करिए कि ये वीक मुझे ऐसा चेंज आना है, नेक्स्ट वीक मुझे ये चेंज आना है। एंड बिलीव मी, दिस स्मॉल चेंजेस दैट वी डू इन अवर लाइव्स, एंड दैट विल एड अप, दैट विल गिव यू कंपाउंडिंग रिटर्न। जैसे स्टॉक मार्केट में बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग रिटर्न आते हैं। यू विल गेट दोस कंपाउंडिंग रिटर्न इन योर लाइफ। Once you get the taste of good health na, you won't need me at all. You will become that ki all your choices, because that will go into your subconscious. You will know कि हाँ, मैंने कल 7 बजे खाना खा लिया था, मुझे नींद कितनी अच्छी आई, मुझे अभी कितना हल्का महसूस हो रहा है। जैसे कल मेरे स्टूडेंट ने बोला कि पहले मैं बेल्ट पहनती थी तो मेरे फर्स्ट होल में आता था, अभी 5th होल में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, वो फैट सेल्स वो गायब हो रहे हैं। वो फैट सेल्स खाली पेट से गायब नहीं होता है, हार्ट से भी होता है। शी इज रिवर्सिंग हर एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, वो पूरे बॉडी से हट जाता है फैट, खाली हमारे कमर से नहीं जा रही है। तो समझिए ये चीज, ओवरवेट होना कोई बोलते हैं ना हेल्दी की निशानी नहीं है ये, कि ओवरवेट है तो ये हेल्दी है। जो बोलते हैं, हमारा सोसाइटी बोलता है कि यार हट्टा कट्टा है तो मतलब हेल्दी है, दैट इज अनहेल्दी। इफ यू आर ओवरवेट, इफ यू आर ओबीस, देयर इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब इन योर हार्ट, एंड विच विल नॉट गिव एनी सिग्नल्स। सिग्नल कई बार झटके से आता है, डोंट वेट फॉर दैट झटका। क्लासेस में आइए, ट्रैवल भी आप कर रहे हैं, मैं इशारे से बोल रहा हूँ, लोग समझ जाइए। जो लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, वेकेशंस आर नॉट मेंट फॉर रूइनिंग योर हेल्थ, वेकेशंस आर नॉट मेंट फॉर ओवर इंडल्जेंस, वेकेशंस आर नॉट मेंट टू स्पॉइल योर हेल्थ, वेकेशंस आर मेंट फॉर रिजुविनेशन। फॉलो योर आईएफ, डू 20-25 मिनट खाली वार्म अप सीक्वेंस कर लीजिए, इनफ ड्यूरिंग योर वेकेशन। ईट मोर ऑफ फ्रूट्स, ईट मोर ऑफ नेचुरल फूड्स, सिंपल। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ मत खाइए, आप भूखे रहिए, वो मत करिए, बट वेकेशन है तो उसको अच्छे से ट्रीट करिए। वेकेशन को भी आप क्यों, आप वेकेशन में अपनी जो सालों की मेहनत है, महीनों की मेहनत आप स्पॉइल करना चाहते हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू दुबई, आई विल बी 10 days, आई विल बी इन दुबई, बट आई विल टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। आई नो दैट दिस, आई वांट टू गो टू दुबई टू लाइक अपलिफ्ट माई स्टेट ऑफ माइंड, नॉट डाउनग्रेड कि आके मुझे फिर एसिडिटी हो, ब्लोटिंग हो, एंड आई जस्ट लाइक नीड अ हैंगओवर हो, एंड 4 दिन तो मुझे चाहिए उससे रिकवर करने के लिए। Okay, so spend your vacations also in a healthy way. Enjoy it. Enjoy that. We are blessed that we can spend so much. We can do a foreign location and में जा सकते हैं हम। Enjoy करने का समय लाइफ, तो उसको healthy enjoyment करिए। Okay, don't over indulge. So let's start with a breathing practice से करते हैं, which is very good for your heart health, which is known as alternate nostril breathing. I think most of us know that, हम सबको पता ही है। I'll just change my location so you can start on your own. जो अनुलोम विलोम बोलते हैं, everybody knows यार अनुलोम विलोम, सबको पता ही है।
where you inhale from one nostril, exhale. I'll just change my location in the meantime, and you can start with Anulom Vilom or any other breathing practice that you know. अगर आपको ये नहीं आता है, you can just sit still and focus on your breath. Let me change my location.